are progressing on the first chapter. Like already the introduction part is over in this chapter. So इस chapter के आज हम explanation शुरुआत कर देंगे. Okay. So explanation part will be like this. Still the students are joining. If you are having any doubts or if you are having a audio problem or you are not able to hear my voice या फिर कुछ तुमको समझ में नहीं आता है मैं जो पढ़ा रही हूँ तो भी you can give me a message in the chat box. Okay. The fun they had की चैप्टर तो हमने लास्ट टाइम भी had completed the introduction. हमने introduction part थोड़ा कर ही लिए. फिर भी हम एक बार दे देते थे because the students who are like behind so that even you guys will be understanding कि इस चैप्टर में क्या हो रहा है. Okay, the fun they had. ये जो चैप्टर की राइटर कौन है? ऐसा नो voice is very flickering. Is my voice is audible now? अब मेरी आवाज अच्छी आ रहा है? Okay, then it is well and good if you are getting my voice now properly. Yes, I'm admitting everyone, don't worry. Those who are coming new, I will be admitting them too. Okay? So, the fun they had is the name of the first chapter in your English textbook, in your English supplementary textbook which is provided. And if you see, the writer of this chapter is Isaac Asimov. His year was like 1922, somewhat 92, his year was, birth to death. He was a very famous writer. He was a very famous writer. Like he is an American writer and a professor too. वो एक अमेरिकन राइटर भी है और एक प्रोफेसर भी है. He was a professor of biochemistry at Boston University. Like Boston University which is situated in America. वहाँ पे उन्होंने like biochemistry लेके पढ़े हैं. Biochemistry it comes in the case of like science and maths. So he was a professor came from back of like a science stream. He was known for his work for science and other popular sciences like whatever as he was a biochemistry sir. So he was very fond of. अगर हमने उनके स्टोरीज भी अगर हम देखेंगे उनके हाथ से रिटन हुआ स्टोरीज भी देखेंगे तो उसमें भी लाइक बहुत साइंटिफिक मीनिंग होती है. देयर आर मेनी साइंस विल बी इंक्लूडेड ओवर दैट. उसमें साइंस की बहुत काम आती है और कुछ ना कुछ लाइक क्रिएटिव इनोवेटिव बेसिस पे दिया ही होगा. सो उसी बेसिस पे ये स्टोरी भी दिया है. सो वी विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ फन जब हम ये कहानी सुनेंगे. व्हेन आई एम टेलिंग यू द स्टोरी ये स्टोरी में भी लाइक तुमको बहुत मजा आएगा. यू विल बी एनकरेज्ड विद लॉट ऑफ फन. The story we shall read is a set of future. Probably हम क्या करते हैं? Whenever we are studying, whatever is being over, जो कदम हुआ है, which is already over, उसी के बारे में हम पढ़ते थे. या फिर the things which are going to come in future. जो future prediction मतलब हमारे prediction के हिसाब से. Prediction मतलब क्या है? ऐसे मतलब हो भी सकता है या नहीं हो भी सकता है. होगा तो फिर हमको उस चीज के लिए तैयार रहके हमको रहना है. ओके? तो उसी बेसिस में हम पढ़ते हैं. तो इवन इन दिस केस ईसाक एसिमोव ने ऐसी कहानी बनाया कि मतलब सभी लोगों को इतनी शॉक हुआ था. इट वॉज टोटली अ प्रेडिक्टेड स्टोरी. फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में सब कैसे होता है, वही एक प्रेडिक्शन बेसिस में दिया है. यस, ओनली 50 स्टूडेंट्स हैव जॉइंड टिल नाउ. मोर दे आर जॉइनिंग. पता नहीं कब तक ज्वाइन करेंगे.
I'll make it as an important notice for them to join from the next class. अपने अपने friends को भी बता दो, like once the class is started, I want everyone to join as early as possible. Okay. In pairs discuss the three things. अभी एक चीज देखो, before we'll start the explanation of the lesson. ईसाक अमिसो ने क्या किया है देखो, ईसाक असिमो ने ऐसे किया कि मतलब फ्यूचर में स्कूल्स कैसी होती है. अभी इस कहानी में एक फ्यूचर इन द सेंस 2157 लास्ट टाइम कोई स्टूडेंट ने देखा था कि वो अभी का मतलब अभी के पैंडेमिक को लोग पहले ही लोगों को पता था, इसीलिए उन्होंने ऐसे कर रहे. नो, ये तभी उन्होंने प्रिडिक्ट करके बनाए थे कि हम अज्यूम नहीं करते 100 साल के बाद कैसा रहेगा. अभी हमने 100 साल पीछे जाएंगे, इफ वी गो बिफोर 100 इयर्स, तभी तो उतना कंप्यूटर का इस्तेमाल भी नहीं हुआ था. फॉरगेट अबाउट कंप्यूटर्स, किसी के हाथ में मोबाइल भी नहीं था. इवन पीपल डोंट नो व्हाट इज मोबाइल, वैसे भी सेंचुरीज थी, राइट. सो हमने कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि 100 साल के बाद क्या नहीं होगा. अभी तो हम किताब रख के पढ़ते हैं, बट 100 साल के बाद ये भी हो सकते हैं कि किताब भी नहीं होगा. सारी चीज मतलब प्रिंटेड की चीज ही नहीं होती है, सब डेस्कटॉप में या कंप्यूटर में स्टोर किया हुआ रहेगा, या टेलीग्राफिक स्टडीज होगी. टेलीग्राफिक स्टडीज मतलब क्या है, बस मोबाइल देख के या फिर कंप्यूटर देख के पढ़ना. शायद तुमको मौका भी नहीं मिलेगा कि स्कूल में आने जाने की. तो वैसे एक चीज है. तो आप इस कहानी में वही इमेजिन करेंगे कि इस कहानी में जरा डिफरेंट कैरेक्टर्स, एक कैरेक्टर कौन ऐड करके देखो. Margie, she was a student or child, whatever we see, of 11 years. Okay, and Tommy, he was a boy and he is again a student, 13 years. अभी ये years सब क्यों बता रही हूँ तुमको पता चल जाएगा, ठीक है. Mrs. Dawn is the name of her Mrs. She is the wife of John. She is the wife of John, mother of Margie. You can say mother of Margie. County inspector. A person who repairs machines, you can say. This is just for your idea purpose. Let's give a video on this. Yes, Dharmik. My voice is lagging every 5 seconds. Why? No. Today is in place of your SST class, your English is taken. First, it is not my lecture. Then too I came because of it is your SST class. Okay. And I think on the last week my lecture is not taken for you guys. So that was also one reason. और देखो दूसरी चीज, स्क्रीन ब्लर आ रहा है मेरे तरफ से बेटा, वो सही है, ठीक है. चेक योर कनेक्टिविटी, अपने कनेक्शन देखो. नोट करिए वो सारे मतलब जो भी नोट्स वगैरह बोर्ड में इस्तेमाल कर रही हूँ मैंने. वॉट एवर नोट्स इज गिवन ऑन द बोर्ड या फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नोट्स दिया जा रहा है, उसका भी फोटो तुमको ग्रुप में मिल जाएगा. अंडरस्टैंड? Yes, connection की प्रॉब्लम. Listen, 9th standard कनेक्शन की प्रॉब्लम थोड़ा हो रहा है, देख लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है. So see, इसमें कौन से कैरेक्टर है. मार्गी इज अ नेम ऑफ अ स्टूडेंट. ओके, वो एक स्टूडेंट है. और ये जो बात चल रही है ना, ये बात मतलब कौन से हिसाब में चल रही है पता है? 2057 में ये बात चल रही है. और अभी कौन सा साल चल रहा है? 2021. माइनस करके देखो
बाद ये बात चल रही है, ओके 136 इयर्स के आगे है। सो उस वक्त में क्या बात होती है करके देखो, उसमें लाइक वो गर्ल है, शी इज अ स्टूडेंट ऑफ 11 इयर्स, उसकी फ्रेंड टॉमी, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ 13 इयर्स, हर मदर एंड अकाउंटिंग इंस्पेक्टर। सो मतलब इस जो कहानी है, ये कहानी पूरा प्रेडिक्शन बेसिस पे ही जा रहा है, पूरा प्रेडिक्टेड बेसिस पे ही जा रहा है। अब मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है ना, या वो भी अटक रहा है? नहीं आवाज पूरा नहीं वीडियो पूरा नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, ठीक है। और मैं ऑनली लाइन में बोल रही Martin even wrote about it that night in her diary. So what was the habit of Martin? Probably diary entry मतलब क्या है, हमने जब दिन में जितने भी काम करते हैं, समझो उस दिन कुछ स्ट्रेंज हुआ, स्ट्रेंज मतलब क्या है, कुछ नया हुआ, कुछ तुम्हारे सोच से आगे हुआ, समथिंग विच इज वेरी स्ट्रेंज, कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है समझो। कि फॉर एग्जांपल तुमने स्कूल में आए, कुछ पार्टीज वगैरह किए हैं, पार्टीज बहुत मज़ेदार चल रहे हैं, सो तुमको डायरी लिखने की हैबिट है। सो डायरी में तुमने ये नहीं लिखेंगे मैं कितने बजे उठा था, फिर मैंने ब्रश करने गया, फिर मैंने बात लिया, ये सारी चीज़ नहीं लिखेंगे। प्रॉब्ली यू विल बी टेकिंग एन इम्पॉर्टेंट नोट्स, जो भी चीज़ इम्पोर्टेंटली उस दिन में हो रहा है, उस दिन में जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट हो रहा है, तो उसी दिन का तुम एक नोट बनाएंगे। वही होता है ना डायरी एंट्री। डायरी एंट्री मतलब क्या है, जो भी चीज़ उस दिन में तुमको कुछ इम्पोर्टेंट काम चल रहा है तुम्हारे, या कुछ ऐसे काम चल रहा है, तो उस दिन का नोट करेंगे तुमने, ओके। सो टुडे ऑन दैट पेज हेडेड 17 मई 2157 मतलब नियरली 136 इयर्स आगे। अगर हम 2021 की बात करेंगे, सो 136 इयर्स के बाद जो हुआ है वही बता रहे हैं, ठीक है। सो अभी उस बेसिस पे हम देखेंगे कि क्या है करके। उस वक्त में क्या हुआ, ये जो टॉमी है ना, वो टॉमी ने कुछ बुक लेकर पढ़ने वाला है, ही इज गोइंग टू टेक अ बुक एंड रीड समथिंग। लेकिन ये जो प्रेडिक्शन के बेसिस में जो यहाँ हो रहा है ना, ये प्रेडिक्शन के बेसिस में मतलब 136 इयर्स आगे चल रहा है, 136 आगे चल रहा है, मतलब उस जगह पे क्या हो जाएगा, तभी कोई प्रिंटेड बुक की काम नहीं होगी। मतलब उस वक्त क्या होता है, कंप्यूटर बेसिस में पढ़ाई होती है, कंप्यूटर बेसिस में पढ़ाई होती है। मतलब कैसा है, अभी हमने क्या कर रहे हैं, कुछ पढ़ना रहता है या हम कुछ पढ़ने जाते भी हैं, तो हमने क्या करेंगे उस जगह पे पढ़ने के वक्त हम वैसे ही मतलब प्रिंटेड बुक्स की इस्तेमाल करेंगे। प्रिंटेड बुक्स मतलब क्या है, जो बुक मेरे हाथ में है, इसको हमने प्रिंट करके इसे बुक जैसा बना के रखे। अभी हमारे टाइम ऐसे है ना, मतलब इस वक्त हमें बुक्स लेके पढ़ रहे हैं, वी आर टेकिंग बुक्स, वी आर टेकिंग नोट्स, एग्जाम्स भी चालू है। लेकिन ऐसे थोड़ी है कि 136 इयर्स के बाद भी यही होने वाला है, नहीं, इस कहानी में तो बिल्कुल वैसे नहीं होती है। उस वक्त क्या किया था, देयर वाज अ रोबोटिक टीचर, वर्चुअल लर्निंग हो रहा था। अभी रोबोटिक टीचर मतलब क्या है, अभी एज ए ह्यूमन बीइंग हम हैं तुमको पढ़ाने को, मैं हूँ, लाइक बाकी टीचर्स भी हैं जो तुम्हारे सामने आके पढ़ाते हैं, और हमारे कैसा है इसमें, मतलब हम तुम्हारी प्रॉब्लम समझते हैं, हमको पता है कि तुम्हारी लेवल ऐसा है, मैं तुमको ऐसे तो आगे नहीं पढ़ रही हूँ। मैम योर वॉइस इज लैगिंग वेरी मच, क्यों लैगिंग वेरी मच? लैग क्यों हो रहे हैं? मेरी वॉइस अभी अच्छे आ रहा है तुमको या अभी भी नहीं आ रहा है? नो प्रॉब्लम, ओके, इफ इट इज नो प्रॉब्लम देन इट इज वेल एंड गुड। अगर प्रॉब्लम कुछ होती है तो फिर बता दीजिए, ठीक है। सो इस जगह पे क्या हो रहा है करके देखो, ये जो रोबोट है उस वक्त में कैसा रहता है, रोबोटिक टीचर। रोबोटिक टीचर इज नथिंग बट अ मैकेनिकल टीचर। मैकेनिकल टीचर मतलब क्या है, तभी तो हमने इतने आगे चले गए, लाइक द साइंस व्हिच इज देयर इट गॉन वेरी फार, इट गॉन वेरी बियॉन्ड, कि इतने आगे हम थे। उस वक्त में देयर वर नो टीचर्स, पढ़ाने के लिए कोई इंसान थे ही नहीं, तभी कैसे हो गया रोबोटिक टीचर्स। जस्ट इमेजिन, ये जो स्टोरी मैं बता रही हूँ ना, ये पूरी इमेजिनेशन वर्ल्ड की है, तुम्हारी सोच से आगे है। तो मतलब उस वक्त में क्या हो जा रहा है, रोबोटिक टीचर्स थे। रोबोटिक टीचर्स मतलब अभी तभी मतलब कैसा है कि तुमको स्कूल में जाके पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, स्कूल में जाके पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है तुमको।
कहीं जाके तुमको बैठना है, कहीं जाके पढ़ना है, ऐसे कोई ज़रूरत ही नहीं था। यू हैव टू सिट एट होम। तुम्हारे लिए हाउस रहेगा, हाउस में एक कमरे रहेगी, वहाँ पे लाइक वॉट एवर सेटिंग, अगर वो कंप्यूटर सेटिंग होने या और कोई टेलीग्राफिक मतलब वर्चुअल टीचिंग तुम्हारे जैसे कि गर्ल्स में घर में होम थिएटर जैसा लगा रहता है, या फिर तुमने कंप्यूटर ला के देखे इतना बड़ा बड़ा स्लाइड दिखेगा, उसमें तुम पढ़ते हो। सो उसमें और अभी क्या करो तुम दोनों, लाइक ये प्रिंटेड बुक्स और वर्चुअल लर्निंग, ये दोनों का डिफरेंस देखो। वर्चुअल लर्निंग मतलब क्या है, जो तुमने कंप्यूटर में सीख रहे हो, अभी भी तुमने कंप्यूटर में सीख रहे हो, अभी भी लाइक हमारे जूम ऐप पे भी कंप्यूटर में सीख रहे हो, लेकिन यहाँ पे मैं एक ह्यूमन बीइंग, मैं एक इंसान पढ़ा रही हूँ। आई एम अ गर्ल, आई एम अ वुमन हु इज टीचिंग ओवर हियर। मैं तुमको यहाँ खड़े खड़े मैं तुमको पढ़ा रही हूँ। ओके, सो माई थॉट ऑफ लर्निंग इज टोटली डिफरेंट। अगर तुमने बोलेंगे कि मैम हमको आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रहा है, तो मैं उसको रीड करके मैं बोलूँगी हाँ आवाज़ नहीं आ रहा है, मैं ठीक करती हूँ। तुम बोलते हो कि मुझे समझ में नहीं आता है, मैं मान लेती हूँ अच्छा ठीक है समझ में नहीं आता है करके मैं दोबारा तुमको समझाती हूँ, तीसरी बार समझाती हूँ, चौथी बार समझाती हूँ। अगर मैं रोबोटिक बनूंगी तो कैसा होगा, हाँ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मतलब बहुत यू नो फॉर्मल हो जाएगा, और इवन द कन्वर्सेशन बिकम्स वेरी फॉर्मल। मैं ऐसे खड़े खड़े मैं रीड करते रहूँगी कि दीज आर द थिंग्स इट इज स्टेटेड ऑन सो एंड सो, ऐसे करके मैं क्या करूँगी उस जगह पे, लाइक उसी बारे में मैं तुमको बताते रहूँगी कि एक रोबो बन के तुम जानते हो। इवन हैव यू गाइस हैव सीन द रोबोटिक मूवीज, उसमें भी तुमने देखी हो कि कितना ये होता है इसमें। ओके, the mic is not proper, don't worry, I will tell the officials to change it out. Okay, शायद माइक की वजह से इतना सब हो रहा है तो फिर देख लेंगे। सो अभी क्या होता है करके देखो, प्रॉपर्ली ये जो रोबोटिक टीचिंग एंड ह्यूमन बीइंग टीचिंग, इस दोनों का बहुत बड़ा फर्क है। ओके, रोबोट आके पढ़ाने का और एक ह्यूमन बीइंग आके पढ़ाने का बहुत फर्क है। वो फर्क तो तुमको भी पता चल जाएगा धीरे धीरे। सो इस जगह पे ये जो इन्होंने जो पढ़ रहे हैं ना, ये जो 2157 चल रहे हैं ना, ये 2157 में कैसे चल रहे हैं, इट वाज अ रोबोटिक टीचिंग, पूरे का पूरे मैकेनिकल वर्ल्ड हो गई। ओके, तभी स्टूडेंट्स को कोई मतलब बैग भी लेके स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, फ्रेंड्स नहीं थे, फ्रेंड्स थे तो भी स्कूल पे जाके वहाँ फ्रेंड्स बना रहे नहीं थे। तो उन लोगों को अगर उस बच्चे से ऐसे बोलेंगे कि उस वक्त ऐसे किताबें थे, 100 साल पहले ऐसे किताबें थे, प्रिंटेड बुक्स भी था, तो तभी स्टूडेंट्स ने क्या बोलेंगे, अरे प्रिंटेड बुक्स ये तो बहुत अजीब से लगता है। अगर मैं तुमको ऐसे बोलती हूँ कि यू कांट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, बट अब मेरी आवाज आ रही है तुमको, अभी वॉइस लैग हो रहा है, मतलब सी मेरे साइड से वॉइस ठीक ही है, आपको क्या हो गया, वॉइस और अभी भी लैग हो रहा है। अब वॉइस ठीक चल रही है, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज इन दैट मेरी आवाज तुमको ठीक हो रही है। इट इज लैगिंग सुजल, यू प्लीज कैन यू लाइक प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन बिकॉज कंटिन्यूअसली द प्रॉब्लम इज विद यू, कंटिन्यूअसली द प्रॉब्लम, प्लीज चेक अबाउट योर कनेक्शंस बिकॉज यहाँ पे मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो यहाँ पे ठीक चल रहा है और बाकी बच्चे का भी ठीक ही है, इवन द अदर स्टूडेंट्स आर मैसेजिंग। तो अभी तुम ऐसे चेक करो कि तुम कौन से जगह पे बैठे हो, तुम्हारे कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना। इवन क्या है कभी कभार लाइक कनेक्शन के हिसाब से भी वॉइस लैग होती है, इवन इफ यू डोंट हैव अ प्रॉपर सेट ऑफ कनेक्शन तभी भी लैग होती है। Then what is the deal? If my audio and video is perfect, then why I get this Sujal from you every now and then? Check your connectivity. So what will happen in this robotic case? So the people like you know as you students उस वक्त में मार्गी और टॉमी को लाइक बहुत दिक्कत, बहुत यू नो फन लग रहा था, इट वॉज टू फनी। अगर मैं तुमको बोलती हूँ, अगर मैं तुमसे बोलूँगी अरे जाओ घर पे जाके लाइक यू नो उसमें लाइक पुराने ज़माने में कैसे ट्रेडिशनल ड्रेसेस थी, कैसे ट्रेडिशनल वे था, तभी तो मतलब कोई कुछ बोलते भी नहीं थे, यू नो लीफी ड्रेसेस भी था तभी। मतलब मैं तुमको अगर कोई ऐसी चीज़ बोलती
होती हो जो तुमको मतलब पहचान ही नहीं रहेंगे, तुम बोलेगी अरे मैम क्यों अचानक इतना पुराना करने बोल रही है, ये तो हमसे होता ही नहीं है। तो मतलब इवन मार्गी और टॉमी को भी यही हुआ था कि उन लोगों को प्रिंटेड बुक्स बहुत बहुत अलग लग रहे थे। ओके, तो वो प्रिंटेड बुक्स मतलब वही है जो टेक्स्ट बुक है, वो देख के उन्होंने बहुत हंस रहे थे कि मतलब मार्गी और टॉमी को बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा था कि क्या चल रहे हैं अभी करके। ओके, तो उस जगह पे क्या हुआ करके देखो। अब हम जाएंगे चैप्टर में। सो देखो, मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। जैसे मैंने तुमको बताया था, जो इम्पोर्टेंट कुछ होती है ना, तब उसने क्या करती है, एक डायरी एंट्री लिखती है। सो दिस डायरी वाज एंटर्ड ऑन 17th May 2157 ईयर। ओके, 2157 मतलब 2157 ईयर के बाद उन्होंने लिखे थे। और टॉमी ने ये बता रहा था दिस इज अ रियल बुक। एक किताब ले गया था उसने मार्गी के पास और ये बोल रहा था कि ये एक सच बुक है। फिर वो बोल रहा था बुक मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक, ये क्या प्रिंट किया हुआ है। फिर वो बोल रहा था हाँ इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। फिर टॉमी ने ये बोला था ये तो बहुत पुराने बुक है, जो मैं ये नहीं किया था, मतलब लोग तो देखे ही नहीं रहे क्योंकि हाँ ये जो प्रिंटेड बुक्स है वो उनका ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर था। ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर का मतलब देखो, अभी टॉमी के ग्रैंडफादर देखो, ग्रैंडफादर से भी और उनके ग्रैंडफादर भी मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर, सो तभी का बुक है। ओके, ग्रेट ग्रैंडफादर के। सो मतलब अभी हमारी जो टाइम है शायद उसके बारे में उन लोगों ने बात की है होंगे। ओके, ग्रेट ग्रैंडफादर की बुक है। सो ग्रैंडफादर्स once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. So उनके ग्रैंडफादर को उनके ग्रेट ग्रैंडफादर ने मतलब ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर को उन्होंने ये बता रहे थे कि जमाना ऐसे भी था कि हमारे पास प्रिंटेड बुक था, प्रिंटेड पेपर था। प्रिंटेड पेपर कौन सा है, यही है जो बुक मैं हाथ में रखी हूँ। इसको हमने प्रिंटेड पेपर को एकदम इकट्ठा करके वी मेड टू अ बंडल ऑफ पेपर्स और अ बंच ऑफ पेपर्स। ओके, इसको एक बंडल कर दिए, ये बुक बन गया। ओके, they turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. So उसने क्या किया, टॉमी ने क्या बोला था, मतलब ये बुक को देखो, तब उन्होंने उनके ग्रैंडफादर थे यही बोल रहे थे कि हम जब पढ़ रहे थे तभी प्रिंटेड बुक्स था विच वेर येलो मतलब प्रॉब्ली तुम देखे रहेंगे ना कि मतलब बुक को इस्तेमाल करते करते वो थोड़ा येलोइश हो जाता है, सफ़ेद बुक्स भी येलोइश हो जाते हैं। क्रिंकली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिंकली, विथ मेनी फोल्ड्स और मेनी लाइन्स। हम अगर तुमने कंटिन्यूसली एक बुक को यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोल्डेड हो जाएगा। जैसे कि ये बुक का अगर मैं यूज़ कर रही हूँ, ये एज क्या हो जाएगा, एकदम फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, सो वो फोल्ड हुआ है, फोल्ड होता था। एंड इट वॉज फनी, awfully funny to read this that stood still instead of moving the way that were supposed to on a screen, you know. So ये रीड करके टॉमी को बहुत हंसी आया था। अरे प्रिंटेड बुक्स था, प्रिंटेड बुक्स पुराना भी होता था ऐसे करके। And then they turned back to the page before. It had the same words on it and it had when they read it for the first time. मतलब अभी टॉमी और मार्गी ने क्या कर रहे हैं, ये बुक जो दिया है, ये प्रिंटेड बुक जो दिया है, वो प्रिंटेड बुक को उन्होंने देखने शुरुआत कर दी है। जब उन्होंने देखने शुरुआत की है तब क्या हुआ था, अभी कंप्यूटर में देखो, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर में तुमने जो स्लाइड्स देखते हो, कोई स्लाइड्स वगैरह देता है तो मैं बोलती हूँ मुझे ये स्लाइड नहीं चाहिए, आई वांट टू गो टू द नेक्स्ट पेज। सो नेक्स्ट पेज हम कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो जो पेज की टेक्स्ट बॉक्स बदल जाएगी, मतलब उसमें जो फॉन्ट साइज रहती है, जो ये रहती है पुरानी है कि बदल जाती है। ठीक है, दिस इज द स्टडी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में ऐसे चलता है। बट व्हेन वी केम फॉर प्रिंटेड बुक्स में ये लोग ऐसे पलट के ऐसे ही देख रहे थे, मतलब दे वर टर्निंग द पेजेस को बदलते रहते थे। बदलने के बाद उन्होंने जब पुराने पेज में, मतलब पहले पेज में जब वापस आए थे ना, वो पेजेस में जो भी लिखा था वो वैसे का वैसे ही था। तो मार्गी को ये तो और गुस्सा आया, अरे हमारी जो कंप्यूटर में रहता है
मैं अगर एक पेज से दूसरे पेज चले जाता हूँ तो मेरा टेक्स्ट बदल जाता है उसमें, उसका जो फॉन्ट साइज रहती है, उसमें जो लिखा हुआ तो वैसे ही रहता है, लेकिन टेक्स्ट तो बदलता है। टेक्स्ट मतलब द साइज बदल जाता है, या फिर यू नो अल्जीरिया से कैलीग्राफी हो जाती है, या फिर टाइम्स न्यू रोमन हो जाता है। प्रॉब्लली आपने टेस्ट किए रहेंगे जब तुमने कंप्यूटर्स में इस्तेमाल किए थे। इफ यू हैव अ हैबिट ऑफ स्क्रॉलिंग ऑन द एमएस वर्ड इन कंप्यूटर्स एंड ऑल, तभी तुम देखेंगे ये को क्लिक करके हम कुछ करेंगे तो दूसरे टेक्स्ट बदल जाती है पेज बदलने में, ठीक है। ये तो वैसे नहीं हुआ, ये तो ऐसे का ऐसे पड़ा है। क्या चल रहा है, प्रिंटेड बुक एकदम बेस्ट है, मतलब उन्होंने उस वक्त में क्या सोच रहे, प्रिंटेड बुक एकदम बेस्ट है, कुछ बदल रहे भी नहीं, ऐसे का ऐसे ही है, इसमें उतना मजा भी नहीं आएगा हमको पढ़ने। अभी मजा नहीं आएगा क्योंकि क्या है, देखो it are the same words on it and that it had when they read it for the first time. Gee, said Tommy, what a waste. So gee is nothing but a surprising emotion. It is nothing but a surprising emotion over here. So उसमें बहुत सरप्राइज हो रहा है कि ऐसे क्यों चल रहा है इसमें। 3G with fold. Okay. So B here is nothing but a surprising emotion. मतलब surprising of you know, उसने बहुत उसको ठंडा हुआ था, he was not happy कि उन दोनों ने यही डिस्कस कर रहे थे कि अभी तो बुक वेस्ट ही है, कि कुछ काम का नहीं है, जैसा है वैसा ही है। What a waste of time. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million of books on it, and it's good for plenty more. I would not throw it away. So मतलब क्या इन दोनों ने क्या डिस्कस कर रहे थे, वो सेकेंड डिस्कशन इनका ये चल रहा है कि मतलब पुराने ज़माने में कैसे था, प्रिंटेड बुक्स का क्या होती थी, अगर तुमने एक क्लास पढ़ के खत्म हो गया, इफ़ यू आर इन 9th स्टैंडर्ड, आफ्टर कंप्लीटिंग योर 9th स्टैंडर्ड, तुम्हारे 9th स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के बाद तुम क्या करेंगे उस बुक को, और मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में क्या करते हैं कि वो बुक को 8th स्टैंडर्ड के बच्चे जो स्टूडेंट पास होके नेक्स्ट क्लास में जाएंगे उनको दे देते, या फिर रद्दी में डाल देते, या फिर घर पे जमा करके रखते, या कभी कभार ऐसे भी हो जाते हैं कि बुक फट जाती है तो फिर तुमको मजबूरी में तुमको फेंकना पड़ेगा, ठीक है। तो टॉमी और मार्गी ने यही डिस्कस कर रहे कि ये जो रियल बुक्स है ये पुराने होने बाद ये लोग फेंक भी देते हैं, लेकिन हमारे जो कंप्यूटर स्टडी है ना वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरा कंप्यूटर में मिलियन और मिलियन से ज़्यादा बुक्स अभी तक वैसे ही पड़ा है, मैं उसको लाइक यू नो मैं उसको कभी भी फेंकता भी नहीं हूँ और फेंकूंगा भी नहीं। अगर गलती से कहीं चले भी गया समझो तो तभी भी मैं वो जो भी चीज़ है वो वापस ले लूँगा, वापस मैंने रीइंस्टॉल कर दूंगा या फिर रीस्टोर कर दूंगा मैं मेरे कंप्यूटर में, लेकिन ये जो काम ये प्रिंटेड बुक्स में नहीं होने वाली है, ठीक है। तो मार्गी सेम विथ माई, हाँ मैं भी वैसे ही करूँगी। शी वॉज 11, सो मतलब क्या है, ये मार्गी अभी 11 साल की है, टॉमी कितना साल का है, 13 साल का है, 13 ईयर्स का है। तो इन दोनों का डिफरेंस देखो इसमें, मार्गी ने क्या बोली थी टॉमी को, हाँ मैं भी वैसे ही करूँगी, अभी तक शायद मेरे पास उतने बुक्स है नहीं, लेकिन जितने भी बुक्स मेरे कंप्यूटर में होगा ना मैं भी वैसा फेंकने वाली नहीं हूँ, और मैं भी ऐसा प्रिंटेड बुक्स सब रख के नहीं घूमने वाली हूँ, ठीक है। वो ऐसे बोलती है, लेकिन अगर हमको सच में बोलना है, अगर सही बताना है ना तो मतलब प्रिंटेड बुक्स ही अच्छा है, ओके। बिकॉज क्या है, एक मैकेनिकल टीचर की है, वो भी तुमको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि क्या है करके। अभी इसमें जो तुमको अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी नोट करना है तो तुम प्रिंटेड बुक्स में मार्क कर लेंगे, कंप्यूटर में कैसे मार्क करेंगे भाई, अगर मार्क करेंगे तो भी हाउ कम यू विल बी नोइंग द इम्पोर्टेंस, पूरे दिन में कंप्यूटर में ही बैठे रहेंगे, विच इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। सो कंपेयर करने में लाइक यू नो तभी की जो स्टडीज है और अभी की जो स्टडीज है इसी में आएगा। नो वन इज वेटिंग ऑन द वेटिंग रूम, रुमीन इज वेटिंग ऑन द वेटिंग रूम, नहीं बेटा मुझे ऐसे नहीं दिख रहा है, नो वन इज वेटिंग, ओके आई
देखो इसमें, सो मतलब क्या किया है वो प्रिंटेड पेजेस था और इसके वाले इन्होंने बहुत भेदभाव किए। उनके जो सोच था वो भी गलत नहीं था, बिकॉज द वे दे आर लर्निंग इज डिफरेंट एंड द वे वी आर डूइंग इज टोटली डिफरेंट। ओके, मतलब उनको इसकी वैल्यू इसीलिए पता नहीं चला बिकॉज फ्रॉम डे वन दे आर यूजिंग द कंप्यूटर बेस्ड स्टडी, कंप्यूटर बेसिस में ही उन्होंने पढ़ रहे हैं। ओके, एज दे आर डूइंग द कंप्यूटर बेस्ड स्टडी उनको ये भी पता नहीं चल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंटेड बुक्स, प्रिंटेड बुक की कितनी वैल्यू रहती है, वो अभी धीरे धीरे तुमको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, शी सेड वेयर डिड यू फाइंड दिस इन माय हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वाज बिजी रीडिंग इन द attic। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ attic, मतलब उसने पूछी थी कि आप ये कहाँ से आपको मिला था, वो बोला था मेरा घर पे जहाँ पे वो रूफ बड़ा रहता है ना वहाँ पर। रूफ मतलब पता है ना, इसका एक वर्ड भी दिया है यहाँ पे, शायद वो उसके बाद आएगा लग रहा है। यस, मतलब वो इतना बिजी था वो प्रिंटेड बुक को रीड करने में कि वो मेरा घर पे मिल गया करके उसने बोल के वही का वही छोड़ दिया। ओके, रूफ इन द attic मतलब क्या है, अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ एज अ स्टोर रूम, यूज्ड एज अ स्टोर रूम। जैसे कि तुम्हारे स्टल्स वगैरह रहते हैं, कोई जो स्टल्स जैसा रहता है, उस स्टल्स में क्या हो जाती है फिर केस देखो स्टेप्स जैसा रहता है, वो जो स्टेप्स के नीचे जो रूफ पड़ा रहता है, जो यू नो एम्प्टी स्पेस रहता है ना, वो एम्प्टी स्पेस में तुमने कुछ ना कुछ स्टोर रूम जैसा इस्तेमाल किए होंगे, तो वैसे भी इसको भी एक स्टोर रूम जैसे ही इस्तेमाल किया है। ओके, वो स्टोर रूम के बेस में ही यूज हुआ है, स्टोर रूम के बेस में यूज करके उन्होंने वैसे का वैसे ही रख दिए। ओके, मार्गी वाज स्कॉर्नफुल। अभी स्कॉर्नफुल मतलब क्या है, शोइंग यू अ थिंग लाइक समथिंग वर्थलेस। ये एक चीज है कि मतलब वो ऐसे ही देख रही थी, शी इज नॉट बॉदर्ड टू सी। ओके, उतने ऐसे लगता था उसको ये जो रीड करते ना एक प्रिंटेड बुक को, वो भी वेस्ट ऑफ टाइम है। ओके, सो उसने वही सोच रही थी कि मतलब ये प्रिंटेड बुक्स देख के भी कुछ फायदा नहीं है, बिकॉज नथिंग वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस, हमसे कुछ सीखने तो मिलेगा नहीं, वैसे बुक्स देखते ही मुझे उतना मजा नहीं आ रहा है। ओके, मार्गी की थॉट ऐसे था, शी वाज लाइक बिहेविंग ऑन सच वे ओनली, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट द स्कूल, आई हेट स्कूल। सो मार्गी ने क्या बोल रही थी, इसमें स्कूल में क्या लिखने का है, स्कूल के बारे में क्या लिखना है, वैसे भी मेरे को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है, वो वैसे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मुझे। बट नाउ शी हेटेड इट इवन मोर, मतलब पहले से कैसा था, मार्गी को पहले से उतनी इंटरेस्ट नहीं था स्कूल्स में, स्कूल बुक में। अभी क्यों इंटरेस्ट उसका निकला था वो भी हम देखेंगे, बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल टीचर। ओके, अभी मैं पहले से मेरे को स्कूल पसंद नहीं है, अभी स्कूल के रिलेटेड ये प्रिंटेड बुक भी है तो मतलब और मुझे पसंद नहीं आएगा। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully. So मतलब ये लाइन क्या समझा है देखो, उसकी जो मैकेनिकल टीचर, जैसे मैंने बोली थी मैकेनिकल टीचर मतलब क्या है, रोबोटिक टीचर। ये जो 136 ईयर्स के बाद ये एक सेंचुरी से भी ज़्यादा खत्म हो गई, तो उस वक्त में क्या होगा, तभी रोबोटिक टीचर्स रहेंगे। ओके, मतलब जो टीचर्स रहते हैं वो रोबोट्स रहते हैं। अभी रोबोट्स कैसे समझाएगा तुमको, रोबोट्स की क्या काम रहेगी, इट इज एज लाइक एज अ कंप्यूटर, जैसे इंस्टॉल किया गया है, जैसे उसमें अपडेट किया गया है, उसी बेसिस पे सिखाएगा। ओके, एंड द अदर थिंग, रोबोट्स डोंट हैव इमोशंस, तो उस जगह पे वापस क्या हो जाएगा, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द चाइल्ड एक्चुअली नीड्स। अभी ह्यूमन बीइंग्स पढ़ाने का और रोबोट्स पढ़ाने का बहुत फर्क होती है, रोबोट्स को समझ में नहीं आएगा तुमको देखकर कि तुमको नहीं समझा करके, अंडरस्टैंडिंग, वो तुमसे क्वेश्चन करेगा और आंसर भी दे देगा, गलत है तो गलत है। ओके, मतलब तुमको ऐसे भी नहीं करेगा, नहीं यू कैन गिव अ ट्राई मोर, तुम ऐसे ट्राई कर सकते, तुमको लाइक देख के तुम्हारे फेस देख के वो रीड नहीं कर पाएगा। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड रोबोट्स। देखो,
सो रोबोट्स ने वो रोबोटिक टीचर, वो जो मैकेनिकल टीचर जो थी, वो बहुत मतलब टेस्ट आफ्टर टेस्ट दे रही थी और उसमें भी लाइक यू नो शी वाज वेरी फेल। उसमें भी लाइक मार्गी वाज गेटिंग फेल और फेल ही हो रही थी until and unless her mother came. Okay, mother एक बार आ गया था and she met the county inspector. She came sorrowfully. Now what is the meaning of sorrowfully here? Sorrowfully मतलब क्या है? Sorrowfully is nothing but sadly. उनको मतलब अगर तुमने कुछ मिस्टेक कर दी है, कुछ गलत किए या कुछ समझ में नहीं आया, तुमको लाइक यू नो you failed in your exam. For example, अगर तुमने फेल हो गए एग्जाम में या फिर कुछ अच्छे मार्क्स नहीं आया, तो मतलब क्या पेरेंट्स क्या हो जाएंगे, लाइक वो लोग आगे बहुत झुक के खड़े रहेंगे, लाइक यू नो they will when they come and meet over here, नो हमको कैसे जैसे ही वो आगे मिलने लगते तब बहुत झुक के खड़े रहते। क्यों? क्योंकि इट वॉज क्या मिस्टेक, मतलब तुमने पढ़े नहीं है ठीक से, तो इसीलिए पेरेंट्स को भी झुक के खड़े रहने पड़ता है। ओके, सो इन द सेम वे मार्गी की जो मदर थे वो भी आगे लाइक बहुत सैडली, बहुत उदास से वो खड़े थे इन फ्रंट ऑफ द काउंटी इंस्पेक्टर। अभी देखो, शी वाज द रोबोटिक टीचर, द रोबोट्स वर द टीचर्स ओवर हियर। ठीक है, जब रोबोट टीचर्स रहती है, रोबोट तो कुछ बोलेगा नहीं, आ जाओ जो भी है, आ जाओ मार्गी के मम्मा, मिसेस डॉन प्लीज कम हियर, आपके बेटे जो है, आपके बेटी जो है, शी इज नॉट स्टडीइंग एट ऑल, उसको कुछ करो, कुछ रेमेडियल दो, कुछ ऐसे बताओ। मतलब ये कोई चीज़ एक रोबोट ने नहीं बताया। ठीक है, क्यों? बिकॉज इट इज़ अ रोबोट, उसमें वैसे कुछ अपडेशन नहीं हुआ है फॉर द मोस्ट काइंडेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो उन्होंने डायरेक्ट किसको जाके मिले थे? शी गॉन मिसेस जॉन, कि शी इज द थर्ड कैरेक्टर ओवर हियर, शी गॉन एंड मेट द काउंटी इंस्पेक्टर। उन्होंने क्या किए? डायरेक्टली जाके काउंटी इंस्पेक्टर को मिले। नाउ हु इज द इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर मतलब पुलिस नहीं है इस जगह पे। ओके, मतलब ही इज द पर्सन हु रिपेयर्स ऑल अ मशीन, स्पेशली इस लेसन में हु रिपेयर्स द रोबोटिक मशीन्स। जो रोबोट्स रहते हैं उसको जो रिपेयर करते हैं ना, वही काम करते हैं काउंटी इंस्पेक्टर ने। ठीक है, सो काउंटी इंस्पेक्टर ही वाज अ राउंड लाइक मैन विद अ लिटिल रेड फेस, होल बॉक्स ऑफ टूल्स एंड डायल्स एंड वायर्स। सो मतलब क्या है, उन्होंने देखने भी मतलब बहुत छोटे थे, वेरी शॉर्ट, ही वाज फैट, थोड़े फैट भी थे और बहुत राउंड फेस थे उनके, रेड आईज थे, ऐसे लगता था ये पायलट्स जैसा दिखते हैं, पता है, लाइक येलो येलो हेलमेट्स जैसा लगवा के घूमते हैं ना, वैसे वो दिख रहा था। What is telebooks? What is telebooks? Telebooks is nothing but wherever you are like you are getting a computer based written information, या communicatively तुमको FM जैसा समझो, FM में कैसा तुम लोग को सुनते रहने का है, बैठे बैठे ऐसे स्क्रीन को देखकर सुनते हो, that is telebooks. Okay, it is one type of a computer based thing only. Understanding? Ananta. Okay, it is quite telebooks like you will be like audio से तुमको कुछ सुनने मिलते हैं डायरेक्टली, या फिर इवन इट विल लाइक वर्चुअल लर्निंग जैसा भी होता है, जहाँ पे तुमको ऑडियो भी दिख जाता है, वीडियो भी दिख जाता है, फिर भी तुम बैठ के सुन रहे हो। इट इज़ लाइक वर्चुअल क्लास। ये जो हमारे हो रही है, इट इज़ वन टाइप ऑफ अ वर्चुअल क्लास जो जूम ऐप में हो रही है। ओके, सो इवन इसको ये जो जूम ऐप तो है, ये तो लाइक अनप्रिडिक्शन, बियॉन्ड प्रिडिक्शन, हम कोई भी लाइक कभी सोचे भी नहीं थे कि ऐसे पैंडेमिक होगा, ऐसे हमको मजबूरी में इनडायरेक्ट लर्निंग, हमको वर्चुअल लर्निंग करने पड़ रहे इस वक्त में। मेरे को अभी भी याद है जब फर्स्ट क्लास मैंने जब पढ़ा रही थी, तब एक स्टूडेंट बोल रहा था मैम कि पैंडेमिक के टाइम पे ये लेसन लिया था। नहीं, ये लेसन तो पहले से ही लेके रखा था, मतलब अभी हमने वर्चुअल लर्निंग ऑलरेडी हमारे चल रहा है, लेकिन वैसे भी वर्चुअल लर्निंग इतनी अच्छे से नहीं होगा जैसे हमारे ऑफलाइन लेक्चर्स होती है। ओके, ऑफलाइन लेक्चर्स नेचुरल लर्निंग का मतलब क्या बोलते हैं, वैल्यू ही कुछ अलग है, वो तो आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ इस जगह पर। सो क्या हो जाएगा करके देखो, लेट मी कंटिन्यू दिस। सो जो मैकेनिकल टीचर जो है, वो मैकेनिकल टीचर के पास उन्होंने मिलने आया डायरेक्टली काउंटी इंस्पेक्टर को। सो काउंटी इंस्पेक्टर ने आके उन्होंने क्या किया करके देखो, मार्गी हैड होप्ड दैट ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही न्यू how all the right and after an hour so there it was again,
मतलब मार्गी जो काउंटी इंस्पेक्टर जो था ना, मार्गी तो वही सोच रही थी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर आए हैं वो कर नहीं पाएंगे, मतलब ये मशीन मतलब ऐसे ही कुछ स्टॉप हो जाएगा या कुछ ना कुछ हो जाएगा, जैसे कि तुम्हारे काम खत्म नहीं हुआ रहेगा। नेचुरली तुम जब क्लास में आके बैठते हो तभी ऐसा रहता है ना, कुछ टेस्ट का दिन रहता है तो उस दिन टीचर्स नहीं आते हैं तो फिर तुमको क्या लगता है, बहुत मजा आता है, अच्छा हुआ टीचर नहीं आया, मेरा होमवर्क नहीं हुआ, अच्छा हुआ सर नहीं आया, मेरा टेस्ट कैंसिल हो जाएगा। मतलब इट इज़ अ वेरी नेचुरल फीलिंग विच अकर्स इनसाइड यू, ये बहुत नेचुरलिस्टिक फील है। जैसे कि मार्गी भी वही सोच रही थी, ये जो काउंटी इंस्पेक्टर जो चेक करेंगे ना, रिपेयर कर पाएंगे ना ये मैकेनिकल टीचर को, तो वो भी ठीक नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मार्गी का जो सोच था वो सोच के रिवर्स प्रपोर्शन में हुआ है। रिवर्स मतलब क्या, कुछ उल्टा ही हो गया है इस जगह पे। उल्टा कैसे हुआ, मतलब एक ही घंटा में विदिन अ हार काउंटी इंस्पेक्टर ने पूरे ठीक करके आ गया था, वो मशीन को पूरे अच्छे से चेक करके आ गए थे। उसके बाद लाइक 1 आवर के बाद फिर से इट वाज अगेन लार्ज ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन व्हिच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot. So अभी मार्गी क्या बोल रहे हैं, ओ माय गॉड ये तो मेरा बियॉन्ड, मेरा लिमिट से भी ज़्यादा चले गया। ये इंस्पेक्टर तो एक ही घंटे में पूरे खत्म करके आ गए, मतलब पूरे सही करके आ गए। अभी देखो वापस वही क्लास में मुझे जाके बैठना है, वही वो अगली क्लास में, इतनी अगली क्लास है कि वो इतनी बड़ी ब्लैक स्क्रीन आ जाएगा, उसमें लेसन्स लिखा रहेगा, क्वेश्चंस लिखा रहेगा, और ये सबसे बेकार बात यही है कि मेरे को स्लॉट भी करना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लॉट? प्रॉब्ली हमने नहीं करते तुमसे ये गूगल ऐप जैसे हमने तुमको एक ऐप दे देंगे, उसमें तुम तुम्हारे होमवर्क अपलोड करो, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके उसको सबमिट करो। इट इज नथिंग बट द प्लेस यू सबमिट द टेस्ट पेपर्स और एनी रिटन नोट्स। जैसे कि होमवर्क देते हैं तुमको तो, और तुमको ये भी बताते हैं कि यू हैव टू सबमिट ऑल दिस। तो ये जो टेस्ट पेपर्स को सबमिट करने का रहता है ना, वही बहुत बेकार की चीज है इसमें। एंड टू पुट होमवर्क, मतलब वो होमवर्क भी उसमें अपलोड करके डालना है। She had always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. अभी जैसे कि अभी इस जगह पे मैं तुमसे और एक चीज बताने चाहती हूँ। प्रॉब्लली ये जो हमारे नेशनल स्टडी जो होता है ना, वो नेशनल स्टडी में कैसे होता है, अब ये चैप्टर मैं तुमको पढ़ा रही हूँ, इफ आई एम टीचिंग यू दिस चैप्टर, मैं तुमको एक लंप ऑफ टाइम तो थोड़ा तो टाइम दूंगी मैं तुमको, लाइक इस लेक्चर में ये चैप्टर में पढ़ा दिया, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका टेस्ट लेती हूँ, समझ गए। और टेस्ट भी कैसा रहेगा, टेस्ट लूंगी, उसको चेक करूंगी, थोड़ा टाइम लग जाएगा उसमें। ये मैकेनिकल स्टडी में मैकेनिकल टीचर क्या करती है, लाइक तभी ही टेस्ट दो, तुरंत मार्क मिल जाएगा। और वापस मार्गी ने लाइक यू नो शी विल बी गेटिंग अगेन 0 इन जियोग्राफी, ओके, जियोग्राफी सब्जेक्ट में फिर से 0। मतलब क्यों ये ऐसे हो रहा था, बिकॉज शी हैज टू मेंटेन अ पंच कोड। अभी पंच कोड मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंच कोड? इट माइट बी अ कंप्यूटर लैंग्वेज। जैसे कि हमारे इंग्लिश के लिए एक लैंग्वेज होती है, हमारे हिंदी के लिए एक लैंग्वेज होती है, इवन मराठी, इवन गुजराती, यू नो लाइक ये सारी जो लैंग्वेजेस हमारे होती है, ऑन द सेम पेज द कंप्यूटर आल्सो हैज अ लैंग्वेज। अभी ये मत बताओ मैम इंग्लिश तो यूनिवर्सल लैंग्वेज है तो कंप्यूटर भी जानना चाहिए, नहीं, ऐसे नहीं है। कंप्यूटर आल्सो हैज वन टाइप ऑफ अ डिफरेंट लैंग्वेज, बट आफ्टर 136 इयर्स वहाँ पे भी एक पंच कोड लर्न करने जरूरी है। अभी हमारे कैसे लाइक 26 अल्फाबेट्स है, वो 26 अल्फाबेट्स को इस्तेमाल करके हमने इतने बड़े हो गए, लाइक वी आर स्टडीइंग टिल नाउ, ओके। ऐसे नहीं है कि केजी में तुमने नर्सरी में स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन सीखे है, अभी नाउ यू गाइस आर 9th and 10th स्टैंडर्ड, कॉलेज में आएंगे तो कुछ अलग ही लैंग्वेज आ जाएगा, ऐसा नहीं। यू व्हाटएवर जो मतलब धीरे धीरे करके तुम्हारे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। फर्स्ट तुमने क्या किए, अक्षर लर्न किए, फिर वर्ड यूज किए, वर्ड के बाद फ्रेज आया था, फ्रेज के बाद क्लॉज आ गया था, फिर सेंटेंस किए थे,
पैसेज स्टार्ट किए, फिर बड़े बड़े लेसन्स आया था। सो मतलब ये एक लेवल ऑफ टीचिंग। इन द सेम वे द पांचवोड इज नोन एज अ कंप्यूटर लैंग्वेज। ये कंप्यूटर लैंग्वेज को 6 इयर्स वक्ती पढ़ाया गया था एट द एज ऑफ 6। अभी मार्गी की एज क्या है? 11 इयर्स। अभी भी उसको उस लैंग्वेज में कुछ पकड़ नहीं है। शी डोंट हैव एनी शी डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन थिंग्स। या यू कैन से इट कैन आल्सो बी अ कोड लैंग्वेज। ओके, कंप्यूटर लैंग्वेज बोलेंगे तो तुमको थोड़ा इजीली रहेगा, इसलिए मैं कंप्यूटर लैंग्वेज करके यूज किया। ओके, फिर कोड लैंग्वेज मतलब तुम भी ये भी नहीं पूछ सकते मैम अभी कोड मतलब क्या है करके। ओके, सो देखो, the inspector had smiled after he was finished and patted on Margie's head. He said to her mother. मतलब ये सारे जो उन्होंने रिपेयरिंग सब करके आ गए ना, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया था? मार्गी को देख के एक स्माइल कर रहे थे एंड ही पैटेड मतलब बोलते हैं ना, शाबाशी दी है उन्होंने, ऐसे शाबाशी दी है मार्गी को और बोले थे कि गुड एंड ही गेव हर एन एप्पल। ओके, फिर उन्होंने बोले थे इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस डॉन, I think the geography sector was geared a little too quick. So मतलब क्या बोल रहे थे? देखो, ये इंस्पेक्टर ने क्या बोल रहे हैं? मिसेस जॉन मतलब अभी यहाँ पे कौन हो गया? मार्गी की जो मदर है। तो उन्होंने ये बोल रहे मिसेस जॉन, ये छोटी बच्ची जो है, ये छोटी लड़की जो है, उसकी गलती नहीं है, ये मशीन की ही गलती है, ये सेक्टर की ही फॉल्ट है। मतलब ज्योग्राफी सेक्टर को थोड़ा गियर, मतलब अगर मैं तुम लोग 9th स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो इस जगह पे, मैं मेरे लेवल ऑफ इंग्लिश को थोड़ा बढ़ा दूंगी, एकदम बढ़ा के मैं तुमको 9th स्टैंडर्ड की जगह पे 11th या फिर 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाने का तरीके मैं तुमको बताऊंगी, तो तुमको मजा आएगा उसमें? बिल्कुल नहीं आने वाले है, राइट? सो क्यों बिल्कुल नहीं आएगा? बिकॉज इट इज बियॉन्ड योर लेवल। जो तुम्हारे लेवल पे है ना, तो फिर उसको पढ़ाते क्यों? इसीलिए अलग अलग स्टैंडर्ड दिया है ना। तो उसी रास्ते में, उसी वे में मार्गी की मदद को भी यही बताया था कि गियर किया गया, मतलब वो लेवल थोड़ा बढ़ा दिया था, वो लेवल बढ़ाने की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। ओके, adjusted to a little high level or standard। मतलब इसको इन्होंने ऐसे किए थे कि ऐसे एडजस्ट किए थे कि थोड़ा स्टैंडर्ड भी बढ़ा दिया, थोड़ा लेवल ऑफ टीचिंग भी उस जगह पे बढ़ा दिया। I have slowed it up and to an average of 10 year level। So उन्होंने क्या बोला था? मैं अभी 10 ईयर एवरेज लेवल पे अभी, और मार्गी की एज क्या है? 11 ईयर्स। सो अभी 10 ईयर्स की लेवल में मैंने सेट कर दिया है। सो अभी ओवरऑल पैटर्न तो अच्छा ही रहेगा, मतलब सब ठीक ठाक ही चलेगा। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अ प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। सो मतलब उन्होंने क्या बोला? स्टैंडर्ड जो पढ़ने का जो लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा है। ओके, और इसमें बच्चे की गलती कोई नहीं, कुछ नहीं है वैसे भी, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस मैंने देख लिया, उसमें सेटिस्फैक्शन है हमको। ओके, इतने हाई लेवल में भी वो थोड़ा अच्छी सेटिस्फैक्शन बेसिस, मतलब सेटिस्फैक्टरी बेसिस में ही उसने किया। नाउ सी, मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड मतलब क्या है? फिर से उसको लाइक डिसअपॉइंट हो गया, फिर से वो पीछे हो गई, उसको गुस्से आ गया इस जगह पे, उतने सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। क्यों ऐसे हुआ? बिकॉज शी हैड बीन होपिंग he would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So मार्गी को अभी फिर से गुस्से हुआ, इसीलिए वो गुस्से कर रही थी, बिकॉज उसने ये सोचा था कि ये निकल जाए, मतलब वो उसको ऐसा लग रहा था कि काउंटी इंस्पेक्टर नहीं कर पाएंगे और ये जो मशीन को उठा के ले जाएंगे, क्योंकि एक बार टॉमी के टीचर का भी ऐसे ही हो गया था। तो टॉमी के टीचर को ले गए थे सर्विस सेक्टर करने के लिए, वो पूरा इरेज हो गया था, तो उसको रीस्टोर करने के लिए 1 महीने तक नहीं आए वो टीचर के। तो वो भी ऐसे ही सोच रही थी कि मेरे टीचर भी 1 महीने नहीं आने चाहिए। ओके, हमारे टीचर भी 1 मंथ के लिए नहीं आने चाहिए, तो अच्छा रहेगा। अभी ब्लैंक आउट मतलब
and if like the history sector at blanked out. Blanked out मतलब क्या है? It has been erased. It has been erased. So उसमें क्या होती है, ये पूरा मतलब टॉमी के टीचर के साथ भी ऐसे ही हुआ था, तो उससे तो चले गया, लेकिन मैं भी सोच रही थी कि मेरे भी टीचर चले जाते तो कितने अच्छे हैं, बट वो गए नहीं। ओके, सो यहाँ तक मैं स्टॉप करती हूँ, यहाँ तक मैं स्टॉप करती हूँ। सबको समझ में आया? यस, बोलो क्या डाउट है?